Hello guys, Namaste. So today we are going to do chapter 4 from the Diary of Anna Frank, class 10th English. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जोइश के बारे में भी जान लेते थे, उधर का क्या था। ठीक है, ओके। तो ये स्टोरी है ना, एना फ्रैंक, वो एक जर्मन लड़की है। ठीक है, फिर वो एक जू है, जोइश। ठीक है, तो जो हिटलर था वो नाजिज्म का फाउंडर था। ठीक है, नाजिस क्या कौन थे? जो नैरो माइंडेड थे, वो लोग खुद को सुपीरियर समझते थे, बाकी सबको इन्फीरियर समझते थे। ठीक है, ये जो स्टोरी है, एक ये 13 साल की लड़की एन जूइश गर्ल। ठीक है, जो ये टाइप का सोर्स होता है, दिस हेल्प्स अस टू नो कि कौन सी ब्रुटालिटी हुई थी। ये एक डायरी में से, ये आपके इंग्लिश में एक रीडर है, डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ठीक है, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके। હવે આ જે આવા બધા this types of sources have become source of information. आप ये सभी जो सोर्सेस है ना, वो हमको इंफॉर्मेशन के सोर्स भी बन गए हैं। ठीक है, इन एने के पिता का नाम है ऑटो फ्रैंक, सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक। ये बिफोर यू रीड में है। ठीक है, तो मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक। ओके, और ये बुक है ना, ये बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इट वॉज रिटन इन डच, लेकिन वो फिर इंग्लिश में ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, ये डायरी एने को उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी। ठीक है, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Writing in diary is a really strange experience of someone like me. Not only because I have never written anything before, but also about it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in a first place. I don't have a friend. Let me put it more clear, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I'm not. I have loving parents, a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friend. I have a family, loving aunt, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the point. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this the friend Kitty. ठीक है, तो इन्हें बताती है कि ये जो डायरी में लिखने का वो बहुत ही एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उसके लिए। ठीक है, उससे ऐसा नहीं कि वो पहली बार लिख रहे इसलिए नहीं, लेकिन उसे लगता था कि कौन इंटरेस्टेड होगा ये पढ़ने के लिए, राइट। एक 13 ईयर ओल्ड की लड़की की डायरी
किसको पसंद होगा पढ़ने के लिए, राइट। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे मेरे हृदय से, जो भी ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है जो मेरे साथ होती है, जिसके साथ वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, उसे लिखना है। उसको सारे उसके क्या बोलते हैं, उसकी फीलिंग, एंगर, डिस्पेयर, वो उसको अपने हृदय से बाहर निकाल कर इसमें लिखना है। फिर वो बोलती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, अगर हम किसी भी हमारे फ्रेंड को या किसी को भी बोलेंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो क्या करेंगे पीपल? रिएक्ट करेंगे, हमको जज करेंगे, सल्यूशन देंगे। लेकिन पेपर, बुक में वो लिखेंगे तो क्या कुछ बोलेगा पेपर? नहीं, वो पेशेंसली हमको सुनेगा। इट विल नॉट सी एनीथिंग। इसलिए हमको एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, किसी के ऊपर हमको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है तो हम हमारी खुद की फीलिंग को उसके कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनी के पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो। ठीक है, जिसके कारण उसने सोचा कि नहीं, डायरी विल बी हर फ्रेंड, और वो ना तो रिएक्ट करेगी, ना तो कुछ जज करेगी उससे, ना सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, इसलिए एक रियल फ्रेंड। तो फिर वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, राइट। उसके पास ऐसे 30, उसके मदर फादर फैमिली है, उसकी बहन है 16 ईयर ओल्ड। ठीक है, 30 ऐसे लोग हैं जो वो गुड फ्रेंड्स बोल सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसमें वो खुद को कन्फाइड कर सके। कन्फाइड का मीनिंग क्या है कि उसको पर्सनल थिंग, प्राइवेट थिंग को ट्रस्ट के साथ वो बोल सके किसी को। ठीक है, इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। और उसने क्या सोचा कि वो है ना, ये एक इन्हेंस, उसकी जो इमेज है इन्हेंस करेगी। इसलिए वो कभी भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना उसको लिखेगी नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं लिखेगी। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये वो करते हैं, लेकिन एने ऐसा नहीं करेगी। और उसने अपने डायरी को क्या नाम दिया? किट्टी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. I started right away at the monastery nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooper's, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me on the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. ठीक है, तो अभी वो बोलती है कि डायरेक्टली अगर वो लिखने लगेगी तो कोई पढ़ेगा तो ऐसे उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। इसलिए वो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कहती है। वो बोलते हैं कि उनके जो फादर है ना, ही इज़ मोस्ट अडोरेबल। इस समय क्या पता चलता है कि वो अपने फादर के साथ बहुत जुड़ी हुई है। ठीक है, उनके मम्मी का नाम भी इधर बताया है। ठीक है, क्या है? एडिथ हॉलैंडर, राइट, एडिथ हॉलैंडर, वो आगे आएगा। ठीक है, फिर क्या, उनके पापा जब 36 और उनकी मम्मी 25 ईयर्स की थी तभी उनकी शादी हुई थी। फिर उनकी एक सिस्टर भी थी मार्गोट, जो फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आता है, 1926 में बॉर्न हुई थी। ठीक है,
और वो खुद बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 में। ठीक है, वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही थे जब तक वो 4 साल की थी। लेकिन उनके फादर हॉलैंड पे वो हॉलैंड पर चले गए 1933 में। उनकी मदर भी उधर चली गई हॉलैंड में सितंबर में। ठीक है, फिर वो दोनों अपने ग्रैंड मदर के घर भेज दिए गए थे एकेन में, क्योंकि इधर तो कोई होगा नहीं, राइट। फिर मार्गोट भी उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, वो भी हॉलैंड में दिसंबर में चली गई और फरवरी में वो चली गई उसके साथ। और वो फरवरी में क्या, मार्गोट का बर्थडे था और उसकी वो प्राइज थी एने। ठीक है, फिर उन्होंने मॉन्टेसरी, और जो एने थे उसने मॉन्टेसरी नर्सरी में अपना स्टार्ट किया था जब वो 6 साल की थी। वो पहले फर्स्ट फॉर्म, लाइक वी हैव स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास, ठीक है, उधर फॉर्म थे, जर्मनी में फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो 6th फॉर्म तक उन्होंने मिसेस कोपरस थी जो हेड मिस्ट्रेस थी। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर दे बोथ वर सो सैड कि एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और ठीक है, फिर वो अचानक से अपने ग्रैंड माँ के बारे में लिखने लगती है कि 1941 में उनका ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए जो एने का बर्थडे है ना वो अच्छी तरह से नहीं गया। अभी ग्रैंड माँ उनकी जनवरी 1942 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, किसी को नहीं पता कि वो खुद ना अपने दादी को कितना पसंद करती है, क्योंकि जब उनके माता पिता और उनकी बहन उधर हॉलैंडर में रह रहे थे, देन शी वॉज अलोन विथ हर ग्रैंड माँ, शी वॉज सो मच अटैच्ड विथ हर। ठीक है, अभी 1942 का बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ। उन्होंने ग्रैंड माँ के लिए उसने कैंडल को भी लिट किया। ये क्या बताते हैं, शी वॉज रियली सो कनेक्टेड। ठीक है, फिर वो अगेन बोलने लगती है कि सब लोग अच्छी तरह से कर रहे थे और उन्होंने सोलम डेडिकेशन के साथ उसे डायरी गिफ्ट की। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि एने फ्रैंक है ना, वो कभी सडन चेंजेस आते टॉपिक में, कभी नर्सरी के बारे में तो कभी ग्रैंड माँ के बारे में, कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में। ये हमको क्या बताता है कि वो एक प्रोफेशनल राइटर नहीं है, एक ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल की ही डायरी है। ठीक है, शी डोंट नो द हाउ टू द वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अभी सैटरडे 20 जून 1942 सबसे पहले उसकी एंट्री थी। वो हम पढ़ते हैं, डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half of the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. It's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even cheers, bleeding glances, and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures in the world. On world. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, um, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I would worry about that letter. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. That evening, after I would finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of the fountain pen. Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing argument to prove that necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages,
Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is the to student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अभी पहले एंट्री में वो क्या लिखते हैं कि स्कूल का रिजल्ट था, सब लोग उधर थे लेकिन सब लोग ऐसे डर में थे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जियन उनकी शायद कोई फ्रेंड होगी और वो हंस रहे थे कि पीछे के जो दो बॉयज़ है सीएन एंड जैकस, वो लोग पूरे हॉलीडे वही ऐसा बैट लगाते रहे, पास हो गया फेल हो गया, पास हो गया फेल हो गया, ठीक है। लेकिन उनको क्या लगता था कि ऐसे क्लास में काफ़ी ऐसे डम्ब लोग भरे हैं कि जिसके कारण पूरे क्लास में से ना क्वार्टर मतलब 1/4 तो इधर रह ही जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई जाएगा ही नहीं नेक्स्ट क्लास में फोर्थ में से, ठीक है। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, राइट। कभी क्या हो जाए भगवान जाने, है ना। उन्होंने बोला कि आई एम नॉट, वो इतना अपने फ्रेंड के बारे में वरीड नहीं है। इधर गर्लफ्रेंड्स यूज़ किया है तो क्या होता है, जो जर्मन भाषा होती है ना उसमें अगर फ्रेंड बोलना आता है, अगर लाइक फ्रेंड वो बॉय है तो फ्रॉन्ड होता है और गर्ल है तो फ्रॉन्डीन होता है। तो ये है ना उसने डच लैंग्वेज में लिखा था, जिसके कारण जो फ्रॉन्डीन शब्द है ना वो गर्लफ्रेंड्स में चेंज हो गया है, ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि उनका फ्रेंड्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जर्मन भाषा में ऐसे ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक हम सिमिलर जैसे फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन जर्मन ने इट्स स्पेसिफाइड गर्ल और बॉय। वो सारे लाइक कोई भी डॉक्टर हो तो उसमें भी होता है, ठीक है। वो उनको पता था कि शी वॉज नॉट वरीड, खुद के बारे में भी वो श्योर थे, लेकिन मैथ्स इज आर ऑल वीक पॉइंट, राइट। कोई कोई नहीं होते, आई रियली लव मैथ्स, ठीक है। तो उनके 9 टीचर थे, सबके साथ उनको मज़ा आ रहा था एक्सेप्ट वन, दैट इज़ मिस्टर की सिंह, ठीक है। वो उनको मैथ्स पढ़ाते थे, एक तो मैथ्स में कच्चे थे वो, और पूरे दिन बातें बातें बातें। इसलिए उनके जो टीचर थे मिस्टर के सिंह, उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐसे ऐसे दिया लिखने पर, और चैटर बॉक्स। ये चैटर बॉक्स है ना, उन्होंने अपना सारा होमवर्क करने के बाद जब उनको टाइम मिला तभी याद आया कि हाँ ये करना था, तभी उनको कुछ भी ऐसा नहीं लिख देना था। ऐसा नहीं कि बीच बीच में जगह छोड़ के हम करते हैं ना, जब हमारे पास टाइम नहीं होता, होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है तो चलो ऐसे हम 3 शब्द की जगह पे सिर्फ 2 शब्द लिख देते हैं, या कभी कभी तो 4 से 5 शब्द में सिर्फ 2 शब्द लिख देते हैं, राइट। तो उनको ऐसा नहीं करना था, उनको एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ आना था। तो वो 2 आर्ग्यूमेंट के साथ आए। एक वो आर्ग्यूमेंट थी कि ये ना ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है। ट्रेट क्या समझाया था ना बायोलॉजी के क्लास में, ठीक है। ये नेचर है स्टूडेंट का, ठीक है। वो लोग बातें करेंगे ही, ओके। और वो ट्राई करेगी कि वो पूरा कंट्रोल में रह सके, लेकिन क्या ये आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ये जो जारी तो रखना पड़ेगा ना, ऊपर से जो चलता आ रहा है। ये भी एक टाइप की क्या है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि उनकी मदर है ना, उनसे ये उनको मिला है, ठीक है। उनकी मदर भी बहुत टॉकेटिव है, उनसे ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने इनहेरिट किया है, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। Okay, Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an unincorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough, and Frank was punished for talking in class. Write an essay untitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. Okay, just the class rolled. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on
on me with the ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem, and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took a joke the right way. He read the poem into the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. Yours, Annie, extracted from the diary of young girl with slight adaptations. ठीक है, तो अभी क्या हुआ? अभी ठीक है, खुश हो गए मिस्टर किसिंग, लेकिन अभी दूसरी बार उनको दिया क्या? दूसरा ऐसे दिया अन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स। इनकॉर्जिबल का मतलब क्या? कि ऐसी क्वालिटी जो कभी भी सुधर ना पाए। वो तो भी 2 लेक्चर तक वो शांत रही, लेकिन तीसरे लेक्चर वापस क्वैक 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 बोलना शुरू हो गया। तभी क्या हुआ? मिस्टर किसिंग ने एक तीसरा ऐसे दिया। क्या था वो? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अभी सब लोग हंसने लगे तो एने भी हंसने लगी। ठीक है, वो खुद एग्जॉस्ट हो गई थी। उसको लगा अब तो कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसे नहीं चलेगा। तो उसकी एक फ्रेंड थी सन है, जिसने उसे ऑफर किया कि क्यों ना हम पूरी ये जो ऐसे वो वर्ड्स में लिखें। तो पोएटिक मैनर में उन्होंने लिखा, एक रिडिकुलस सब्जेक्ट्स था। ठीक है, तो फिर एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम उसमें लिखी विच वॉज अबाउट अ मदर डक फादर सोन। उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, वो बहुत क्वैक 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 कर रहे थे। तो उनके पिता ने क्या किया? उनको मार दिया। ठीक है, लकीली क्या हुआ? मिस्टर किसिंग को ये जोक थे ना, उन्होंने राइट वे पे लिया। ठीक है, रॉन्ग वे में लिया होता तो बेचारे के साथ क्या क्या हो जाता। ठीक है, उन्होंने ये पोयम काफ़ी क्लास में भी, दूसरे क्लास में भी सुनी। ठीक है, कमेंट्स अपने दिए, अपनी राय दी। ठीक है, और उसके बाद एने को थोड़ा बहुत बातें करने को अलाउ भी कर दिया, और मिस्टर किसिंग भी अभी जॉयस इंसान बन गए। ठीक है, वो भी बीच बीच में मजाक करा करते थे। ठीक है, सो आर चैप्टर एंड्स ओवर हियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।